Hi Vishal, how are you? Not so great. Not so great. How does your neck feel? थोड़ा गर्दन में कुछ दुख रहा है, कुछ हो रहा है? Because I remember in the last episode you said I'm going to stick my neck out for this team and say that we will win the next two matches. अभी एक तो definitely we lost, एक बाकी है, but how does it feel? And I'm sticking my neck out and saying I think India has been fair. India has been unlucky in those individual matches a bit, but India has been extremely lucky to be at 1-1 when they're traveling to Melbourne. Australia की यही ख्वाहिश थी कि अब तक 3-0 हो जाएगा, वो नहीं हुआ है. We are level, and I think now the luck factor will kick in and India is going to win this test match. Actually 2-3 दिन से literally neck में दर्द हो रहा है. मैंने कुछ सामान उठा लिया था. I didn't know that it is the forebearer of such bad news that's going to come. Last year के मंडे की भी मंडे मॉर्निंग ब्लूज करा दी इन्होंने. I think वो इंडियन फैन होने का बोझ था तेरे नेक के ऊपर. लास्ट मंडे ऑफ द ईयर भी सुनहरा नहीं रखा इन्होंने. फुल मंडे मॉर्निंग ब्लूज कर दिए. आई थिंक now I will not stick my neck out in for any favorable result for India this week. Not because I'm despondent or not because I'm angry or there is a knee-jerk reaction, but I think come to think of it, maybe ठीक ही हुआ कि पंत ने वो रैश शॉट खेला. Maybe ठीक ही हुआ कि वो 50-50 डिसीजन यशस्वी की फेवर में नहीं गया. Because again these two things would have covered up a lot of aspects that are being ignored lately. I think fact of the matter ये है कि ऑस्ट्रेलिया ने बहुत 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 बढ़िया क्रिकेट खेला. और when I say बहुत बहुत बढ़िया, I mean relentless. They were relentless because प्रॉपर टेस्ट क्रिकेट खेला उन्होंने प्रॉपर टेस्ट क्रिकेट खेला जो हम नहीं खेल पा रहे. हम 50 ओवर बुमराह ने कर दिए तो हम बोल रहे हैं अरे बाप रे कितना सारा वर्कलोड हो गया. 46 ओवर्स कमिंस ने किए, 40 प्लस ओवर्स स्टार्क ने किए, 40 प्लस ओवर्स बोलैंड ने किए, ऑन द ट्रॉट किए विशाल. 46 करना भी और ऑन द ट्रॉट 9 ओवर 8 ओवर कर रहे जो. एंड let's understand also, yes, Bumrah ho ya even Pat Cummins ho ya Stark ho, they are not youngsters. They are not 22-year-olds. But their physical, their fitness is showing कि भाई वो कर सकते हैं. वो mentally they are prepared to do it, to push their bodies to do it. 5 years older than Bumrah. So and Pat Cummins is also older to Bumrah. And Pat Cummins ने बैटिंग भी बहुत करी है इस सीरीज में. बहुत करी, correct. So his time spent on the field is much more than Bumrah. True captain's knock, which we needed, but we didn't get. I think तो while Bumrah ने तो phenomenal performance दी है, and maybe वो ये सब बात कर भी नहीं रहा है, but फिर भी हम ये जो workload management ये वो मुझे समझ नहीं आ रहा है कि प्राइमरी प्रॉब्लम ये है कि बुमराह को पहली बात तो कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है बॉलिंग में. In no small measure due to absolutely ridiculous team selections. नेथन लायन ने 4 मैचेस में 7-8 विकेट लिए हैं, बट उसको हर मैच खिलाया गया है. अगर अश्विन को ये कॉन्फिडेंस दिया होता तो मे बी अश्विन सीरीज के बाद रिटायर होता है, पहले नहीं होता. और नेथन लायन ने तो बैटिंग में भी कुछ कंट्रीब्यूट ऐसा मेजर नहीं किया अपार्ट फ्रॉम दिस मैच. ऑफ कोर्स दिस मैच इज कंट्रीब्यूशन वाज मेजर, वो तो अश्विन भी कर लेता. सो हमने ना सॉरी कट यू नो व्हाट यू आर सेइंग. Their performances are not great, but they are made to look great because हमने ट्रेविस हेड को विकेट दे दी. हाँ. अब जो तो बॉलर भी नेथन लायन तो फिर भी रेगुलर बॉलर है ना, वो चाहे 6-7 ले या 3-4 भी ले, बट वो तो ही सपोज टू डू दैट. ट्रेविस हेड को भी हम विकेट दे के आ रहे हैं ऐसे बकवास शॉट्स मार के और ऐसे सिचुएशन अवेयरनेस नहीं दिखा रहे. So we are making them look even better than what they are definitely. They performed very well. They deserve to get. Practical blunders that they also made in this match. Yeah, absolutely. In fact, अगर purely tactical news की बात की जाए, Pat Cummins की, he was not at his best. Correct. और 96 पे 6 विकेट जा चुके थे, so they also had somewhere lost the plot. हमने उनको फिर भी दे दिया अपॉर्चुनिटी की और मार लो तुम आगे 50, And the fact that उनके last number 10 और 11 ने 20 ओवर खेले, what does it speak about us also? मतलब हमारे 10-11 ने कितने ओवर खेले. हालांकि उनको ब्लेम करना फिजूल है. ओवरऑल हमारी टेल ने जितना कर सकता था कर लिया. But that we let Boland and Lyon play 20 overs
is a serious question mark on the bowling abilities of India. And अगर हम वॉशिंगटन सुंदर और जडेजा को ओवर नहीं देने वाले हैं तो उनको लेके हम क्या कर रहे हैं? दो स्पिनर क्यों लेके जा रहे हैं हम? जिस पिच के ऊपर बॉल इतनी टर्न नहीं हो रही है, 5वें दिन पे भी बॉल क्या बाउंस हो रही थी, जो कंट्रोवर्शियल कैच हुआ, वो बॉल का बाउंस देखो आप, जायसवाल ने जो कहां पे उसने यहाँ पे लिया है वो बॉल को। तो ऐसा नहीं कि बॉल बाउंस नहीं हो रहा था या मूव नहीं हो रहा था, और ऐसा कोई खतरनाक टर्न भी नहीं हो रहा था। तो दो स्पिनर हमने क्यों, सिलेक्शन क्या सोच के हम कर रहे हैं हमारे प्लेयर्स का, इट्स कंप्लीटली माइंड बॉगलिंग टू मी। And much as I love Rohit Sharma, and I really love him even now, I think he's been a great servant of Indian cricket. Maybe he should have announced his retirement today. I think he's clearly skipped a beat here, and maybe Virat also should have announced कि मैं इस सीरीज के बाद अब नहीं खेल पाऊंगा, बिकॉज अगर आप साल के एवरेज देखो, चलो 3 महीने के नहीं देखते हैं, 1 महीने का नहीं देखते हैं, अगर रोहित शुड हैव अनाउंस तो विराट को भी अनाउंस करना पड़ेगा। मैंने के एवरेज में तो रोहित का एवरेज अभी मैंने पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस इसी होप में देखा कि रोहित शर्मा क्या बोलता है। आई डिडंट हैव दिस इन माइंड, बट वो अनाउंसमेंट करने से कोसों दूर है। He was still saying things like we did not capitalize after getting 95 for 6, तो वो बॉलिंग को ही ब्लेम कर रहा है। वो देख ही नहीं रहा है कि बैटिंग हमारी, हम इनफैक्ट बॉलिंग और फॉरगेट एक ही आदमी बुमराह है जो अब तक हम लोग को इवन T20 वर्ल्ड कप उसी ने जीता है सिंगल हैंडली। मैं तो ये बोल दूंगा, हम सब रोहित करते रहे मुंबईया होके और रोहित के फैंस होके, एंड वी गेव हिम अ लॉट ऑफ क्रेडिट एंड ही डिजर्व्स दैट आल्सो। T20 वर्ल्ड कप में तो मैं उसको क्रेडिट दूंगा बिकॉज़ ही रियली, मैं भी दूंगा, बट अभी मुझे ये रियलाइज हो रहा है दैट बुमराह डिजर्व्स टू बी द नेक्स्ट लीडर। आई एम अ वेरी स्ट्रांगली, मैं ये आई कैन पुट इट आउट देयर सेइंग यार, यू आर बेस्ट परफॉर्मिंग पर्सन इन द टीम, प्लेयर इन द टीम, somebody who also, जिस तरह से हम एक टेस्ट मैच अभी जीते भी है, दैट एंटायर क्रेडिट गोस टू हिम। तब तो रोहित था भी नहीं। एनीवे आई थिंक प्रैक्टिकली भी आप देखो तो अब ये लास्ट टेस्ट मैच है सिडनी में, उसके बाद नेक्स्ट टेस्ट मैच तो 10 महीने बाद है, तब तक तो कौन रहेगा वैसे भी, और वो नेक्स्ट साइकिल है। बिकॉज अब मैं तो अब कोई होप्स हार्बर नहीं कर रहा हूँ कि सिडनी में इंडिया जीतेगी और ऑस्ट्रेलिया दोनों हारेगी और इंडिया आ जाएगी। अब इट वुड बी स्टूपिड, आई मीन टू इवन, नहीं वो श्रीलंका का, जब इंडिया नहीं कर पा रही है तो श्रीलंका के पास वो होप हमें रखनी नहीं चाहिए। नहीं, श्रीलंका अगर कोई टीम ऑस्ट्रेलिया को 2-0 हरा सकती है फिलहाल, तो श्रीलंका ही करा सकती है श्रीलंका में, ऐसा नहीं है। बट आई एम सेइंग दैट वुड बी, वो होप बहुत ज्यादा है कि उस चक्कर में रिटायरमेंट ना ले। अच्छा, अगर बाय चांस ऐसा हो भी जाए और ये वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में आ भी जाए, वो फाइनल भी जून में है, इट्स 6 months away. So I think much as I would have wanted Virat also to break every possible record, the fact of the matter is that if we really want to become a very good test team or a very good international team across all formats, I think we will have to drop this toxic fan club culture, this idolizing culture. रोहित का ही तो पॉइंट था ना कि 100s को मत करो, डेमीगॉड मत बनाओ। रोहित की भी फिलोसफी ले लो तो उसी की फिलोसफी के हिसाब से उसको और विराट को अब ड्रॉप डाउन हो जाना चाहिए। विराट का इस पूरे साल का एवरेज 24 है, जो 0.5 कम है रोहित से, और जब इन्होंने रहाणे और चेतेश्वर पुजारा को ड्रॉप किया था उनका एवरेज 29 और 30 था, एंड ओवर अ 1 year 2 year पीरियड। रहाणे का ओवर 3 year पीरियड। They just have to look at the sheet once, they will understand. और तब ये लोग बड़े बड़े कमेंट मार रहे थे, विराट कोहली बोलता था I think Pujara has to show some intent now. Players need to show some intent now. कहाँ गया उसका इंटेंट? इंटेंट सिर्फ मारने में नहीं होता है, इंटेंट ऑफ साइड की हर बॉल छोड़ने में होता है। वो क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने पैकेज बनाया है विराट के डिसमिसल्स का, इस पूरी सीरीज में हर डिसमिसल सेम टाइप में हो रहा है। सेम फिशिंग आउटसाइड द 8-9 स्टंप के ऊपर वो बैट घुमा देता है। 15 ओवर बचे थे, 90 बॉल्स खेलनी थी। आज का मैच तो हम सिर्फ और सिर्फ विराट की वजह से हारे। शर्मा ने 40 बॉल तो खेली, और शर्मा तो इतने वोफुली आउट ऑफ फॉर्म है कि वो 40 भी बोनस था। बट विराट क्या कर रहा था उस स्टंप पे मार के? आई मीन दिस मैच हैज बीन द रन आउट दैट ही वाज अ पार्ट ऑफ, देन द मिस्टेक दैट लेड टू हिज डाउनफॉल इन द फर्स्ट इनिंग्स आल्सो। ही इज द आर्किटेक्ट ऑफ दिस मैच का लॉस, ही हैज टू टेक द ब्लेम, ही कैन नॉट। उसके फैन क्लब्स जो हैं वो एक धक्का मारता है कॉन्स्टेस को और वो एक इंस्टाग्राम रील बना देंगे और अंदर का कुत्ता नच पड़िए वो गाना डाल देंगे, 4 रील बन जाएगी और उसका स्टंप माइक का बना देंगे। हो गया, क्योंकि
if I see every reel that comes on my feed, it's almost as if सारे BGT उसने जिताए हैं, जबकि लास्ट BGT वो था भी नहीं जो ऑस्ट्रेलिया में हुई थी, वो तो अजिंक्य रहाणे की वजह से जीते। उसके पहले आप अश्विन की वजह से जीते हो। आप ये सारे रील्स और स्टार स्पोर्ट्स भी दिखाया जा रहा है, ये 100 वो 100, अजिंक्य रहाणे का 100 कब दिखाओगे? चेतेश्वर पुजारा के नॉक Hanuma Vihari, everybody's forgotten. एक टांग टूटी, the back broken, he played and he saved. So I mean, these are the performances. वॉशी सुंदर और इसका शार्दुल ठाकुर के नॉक्स और विकेट्स कब दिखाओगे? करेक्ट। राजन का स्पेल कब दिखाओगे? नवदीप सैनी को कब दिखाओगे? सो आप इन सारे लोगों को छोड़ छाड़ के बीजीटी हैज कम टू सम गाली गलौज बाय अ कपल ऑफ प्लेयर्स। नहीं, ये कितने भी रील्स इस बात को कवर नहीं कर सकते that a lot of other players have done the job and absolutely अगर एक प्लेयर जिसको इंडिया जबरदस्त मिस कर रहा है, जिसके वजह से ये आके दादा बन रहे थे, क्योंकि वो सारी बॉल की शीन हटा दे रहा था, सारे बॉलर्स को थका के मार दे रहा था, मिस्टर चेतेश्वर पुजारा बैठा है कमेंट्री बॉक्स में। ये मैच में चेतेश्वर पुजारा होता तो ये 15 ओवर कब के निपट चुके होते, वो खुद ही आउट लेट गया होता वहां पे, हम ये डिस्कशन नहीं कर रहे होते। तो आई थिंक जो मापदंड आपने यूज करे हैं पुजारा और इस पोजीशन में ही ना होते, क्योंकि वो इस पोजीशन तक आते, पहली इनिंग्स में भी खेलता वो, नो वी माइट प्रॉब्ली माइट नॉट बी सेविंग दिस, वी माइट बी प्लेइंग टू विन। अब जो बेंचमार्क्स आपने रहाणे और पुजारा के लिए लगाए हैं, वो तो आपको खुद के लिए भी लगाने पड़ेंगे, या फिर आपको तब थोड़ा सा केयरफुल रहना चाहिए था ये इंटेंट वगैरह जैसे फालतू बकवास करने से पहले। No, I think Kohli's downfall is also very evident from the fact that now he's doing that, वो 19 साल के लड़के को जाके उसको ऐसा ये कंधे से मारना and all, which is not the stuff of legends. जब आपका नाम for whatever legacy that you have created, I'm saying एक नाम है आपका, एक रिकॉर्ड से बनाया है आपने, अपने गेम से बनाया है, now you're completely throwing it down the drain by behaving like this, by और उसमें भी उसके फैन क्लब्स बना रहे हैं वो रील्स कि जो आज इसको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, वो 3 साल पहले उसको क्राउड ने कैसे बिहेव करा था, उसके पहले कैसे बिहेव करा था, तो उसको जब भी बिहेव करा था तब भी उसने जवाब दिया था। करेक्ट, और मैच्योरिटी होती है ना यार, कोई चीज मैच्योरिटी कुछ चीज होती है। बट तब वो 24-25 साल का था, आज वो 35 साल का है, 36 साल का है, ऑन द वर्ज ऑफ द लास्ट ईयर और 2, एंड सामने से जाके आप एक 19 साल के लड़के को धक्का मार रहे हो। डेविड को पॉन्टिंग ने हरभजन को तब छेड़ा था ना, तो तब हरभजन 19 साल का था ना, पॉन्टिंग तब 36 साल का था। ठीक है, जब पॉन्टिंग 36 का था वो सब छोड़ चुका था। मोर इम्पोर्टेंटली तब हरभजन भी चुप नहीं बैठा था, he had given a mouthful to पॉन्टिंग। ठीक है, करेक्ट। I'm saying let's not go down that path and let's not edit clips and start putting it। बड़ा सिंपल है, कॉन्शियस ने आपको धोया। ऐसे जब सहवाग धो रहा था ना, तो सहवाग को कोई कुछ नहीं बोल रहा था, और अगर शोएब अख्तर ने उसको कुछ बका भी होगा तो सहवाग ने उसी के जबान में उसको वापस सुनाया। एब्सोल्युटली। तो लेट्स नॉट गेट द, इंडिया ने इन ऑल ऑनेस्टी जब से सौरव गांगुली आया है, इंडिया हैज स्टॉप्ड लिसनिंग, इंडिया गिव्स इट बैक इन द सेम कॉइन इफ नॉट वर्स, एंड दैट इज हाउ इट शुड बी, बट इंडिया गिव्स इट बैक। ये बहुत अगली था बिकॉज हमने स्टार्ट करा और रिक्वायरमेंट थी नहीं। करेक्ट, देयर इज नो नीड। कोई अच्छा कर रहा है तो आप जाके उसको अब तब चिल्लाओ जब कोई आपको कुछ बोल रहा है, दैट मेक्स सेंस। अलग बात है, आप यशस्वी और स्टार्क का जो बैंटर चल रहा था वो अलग बात है, सिराज की अलग बात है। सिराज उस मुकाम पे है ही नहीं जिसपे विराट है। एब्सोल्युटली। तो सिराज को अलाउड है, बट आप कैसे कर रहे हो यार, एंड फॉर व्हाट? एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आप फिर भी स्लेज कर लो, कांटेक्ट इज नॉट अलाउड। फिजिकल कांटेक्ट बहुत सस्ते में, वो 50% मैच 20% मैच फी इज अ वेरी चीप थिंग, अदरवाइज दिस शुड हैव बीन मच मोर। एंड ये सब से आ रहा है, इट वुड हैव बीन अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज अगर उसको एक मैच का बैन मिल जाता, जो एक मैच अभी बाकी है। एंड अभी भी कई बार जब सीरीज इज लॉस्ट एंड एवरीथिंग इज लॉस्ट, की प्लेयर्स को बिठा दिया जाता है ना, अगर ये खुद नहीं अपने आप को बिठा रहे तो मे बी इट्स टाइम टू टेल। सी आई एम आल्सो देयर वेरी डिसअपॉइंटेड विद गौतम गंभीर। I had huge expectations from him, but clearly there is a reason why if you don't watch, if you're not actually have played the game, you're not 100% there. We are fans, and I think all of us reacted as fanboys. कि GG era start हो गया, गौतम आ गया, but it's very clear the difference is stark between
performing in IPL and performing at the test match level. And I, सबसे बड़ी चीज है to me why I'm disappointed with Gambhir, and I'm not passing on the blame to him, is because selection का कोई सर पैर ही नहीं है. यही गौतम गंभीर अश्विन के पॉडकास्ट पे आके, ये कोच बना उसके 2-3 महीने पहले बोला था, इफ इंडिया इज नॉट प्लेइंग यू, इट इज देयर लॉस नॉट योर लॉस. और यही गौतम गंभीर आने के बाद उसको खिलाता ही नहीं है. It is ridiculous. And like Gavaskar said, even if there was a 5% excuse to drop Ashwin, they would drop him. और यहाँ पे 99% reason है इन दोनों को drop करने का, and they're not dropping themselves. They're not dropping. I mean, if you ask me, Pant has to be benched. Jurel has to be. इसको Gavaskar had benched Kapil Dev once. When Kapil Dev was the star, this is after the 1983 World Cup. Pant should be benched to make him learn that आप 125 बॉल खेलने के बाद ये बेवकूफी नहीं कर सकते. Absolutely. आप ये लेवल पे बेवकूफी कर ही नहीं सकते. आप इस लेवल पे आने के बाद इस मैच में जो आपके लिए इतना इम्पोर्टेंट है, ये बीजीटी कप के लिए नहीं, आप WTC, यू हैव टू कीप एवरीथिंग इन माइंड. यू कांट प्ले सच कि अरे मैं तो ऐसे ही खेलता हूँ, इज नॉट द वे. दैट इज अ वेरी टीनेजर अप्रोच टू लाइफ. दिस इज हाउ वी आर, दिस इज हाउ आई. नहीं चलेगा यहाँ पे. नहीं, ये जो बकवास चल रही है ना, we want players to express themselves. ये express themselves का जो बकवास नहीं they want players to perform only ना, in work उसमें क्या है, ये express themselves. कुछ ना अंग्रेजी के मुहावरे जो इन्होंने रट लिए ना, that's why English is not the best. It's important to express ourselves. We tell our क्या express, तुम फील्ड में गए तो express ही करोगे ना, तुम खेल रहे हो, तुम डिफेंड भी कर रहे हो तो express ही कर रहे हो ना. क्या लॉजिक हुआ. And I think Padikkal has to come in, or Abhimanyu Easwaran has to come in for Rohit. Easwaran has to come in. In fact, I think Easwaran should come in for KL Rahul, definitely. And I think Jurel should come in for Pant. I would still give KL Rahul one more match, if not for anything else, because he's put in some effort in the series. I see, that's the thing, that my problem is there. हमारे standards इतने low हो चुके ना, वो एक मैच में हमने, वो क्या ना, जैसे बाहुबली आ जाता है वो वीडियो मीम जिसमें वो उठा रहा है बाहुबली, तो एक बार यहाँ पे होता है राहुल, फिर दूसरे मैच में यहाँ पे होता है गिल, फिर तीसरे में पंत. अरे हर एक 50 मारने पे आप उसको बाहुबली नहीं बोल सकते. नहीं बना सकते. टोटल फ्लॉप होने के बाद भी ट्रेविस हेड के 400 प्लस रन है इस सीरीज में. हाँ. So और I think Sarfaraz has to come in for Virat Kohli, not because I think Sarfaraz is a better batsman, because आप उसको लाए क्यों ऑस्ट्रेलिया. Exactly. क्या दिखाने आया होगा, खाली घुमाने थोड़ी, टूरिस्ट है. You don't even have the technique for Australia, but it doesn't matter. आप लेके तो आए उसको, तो फिर खिलाओ. Yeah. नहीं तो क्यों लाए हो? And let Kohli be benched, and let Siraj be benched, because Siraj has not performed the best. And anyways वो थक गया है, वो दिख रहा है. Get Prasidh Krishna, get fresh legs now, get fresh legs. Get Jurel, get Siraj, get Abhimanyu. Get drop Siraj, Sarfaraz. I think that is the only way to go. We should go for that. We should go for the result. In any case, WTC is now. At least BGT तो आप एक ही ट्रॉफी आप अगला मैच जीत जाओ. You have to play to win. And with this 11, you're not going to win. इस 11 से तो आप जीत सकते, बिल्कुल नहीं जीत सकते. और एक्सप्रेस themselves ही करवाना है तो इन्हीं से करवा लो ना. अच्छा, वर्स्ट केस क्या, हारने ही वाले ना, तो हार तो वैसे भी रहे. टू तो हो चुका है, 2-1. तुम लेवल ही करोगे या तो जीतोगे. और बुमराह को बना दो कैप्टन, एंड बी वेरी क्लियर, नीतीश रेड्डी को आपको टॉप 6 में लाना है. आपका बैलेंस तभी मेंटेन होगा, नहीं तो नहीं होगा. नीतीश रेड्डी भी देखिए आज आउट हो गया, राइट. कल बाहुबली था, आज 0 हो गया. अभी उसको भी जरा 5 मैच दो, 10 मैच दो कि वो अपने आप को प्रूव कर सके. Let's not even think of him as a really, ठीक है, वो there is a nice, we start putting out those emotional stories, उसके parents का story and all, which is all fine, but that can't decide everything just because he can bring. This is not a drama series. Nitish Reddy की तो मैं बात नहीं कर रहा. I think we discussed in a previous video also that Nitish Reddy has done very well. I think we should just let him be. I think, see, in all honesty, आज उसने नहीं भी किया. फैक्ट ये है कि 5वें दिन के लास्ट सेशन तक, लास्ट घंटे तक मैच गया भी नीतीश रेड्डी की वजह से. अदरवाइज ये मैच तो कल ही खत्म हो चुका होता. तो ये मैच वहां पहुंचा, तो नीतीश रेड्डी को तो मैं कुछ बोलूंगा ही नहीं. आई थिंक दैट्स वेयर एक्सपीरियंस आल्सो काउंट्स. आई मीन, लेट्स बी फेयर, वो आउट हुए नेथन लायन के हाथों.
550 प्लस टेस्ट विकेट्स लेने वाला बंदा एक 21 साल के बच्चे को डेफिनेटली 5th डे के 3rd सेशन के लास्ट ओवर में उतना दबाव डाल के आउट कर सकता है. No, point, definitely. No, that's what I'm saying. That only. I think that's what we need to do. We don't need to be very disappointed and depressed कि यार रेड्डी ने कुछ नहीं किया, and we can't be very very overjoyous also अगर उसने 50 मार दिए होते तो. We need to start having a balanced, outlook to these players and their performances. हम इस पूरी सीरीज खेले 9 प्लेयर्स के साथ against 11. Virat and Rohit are walking wickets. Virat after hitting 100 has not even crossed 150 runs. वो 100 275 for 2 पे जब इंडिया थी तब जाके बना है with dollops of support from Nitish Reddy. But चलो I'll give that 100 to him. But is this what he's expected to do? It's 2-3 चीजें बहुत क्लियर हो जाएगी इस सीरीज के बाद. सचिन रमेश तेंदुलकर से कंपेयर होने की किसी की औकात भी नहीं. आई थिंक फॉर एवर एंड एवर ये कंपैरिजन अब बंद हो जाना चाहिए. फॉर एवर एंड एवर. ठीक है, दैट इज 1. 2, वेरी वेरी क्लियरली ये डिस्कशन भी कभी नहीं होना चाहिए कि सचिन को 6 महीने पहले रिटायरमेंट कर देना चाहिए था. जब थोड़ा खींचा. सचिन तेंदुलकर अपने लास्ट मैच में भी, अपनी लास्ट इनिंग में भी 74 रन बना के आउट हुआ. ठीक है, तो सचिन तेंदुलकर ने अपने रिटायरमेंट को एक इनिंग में नहीं खींचा. वो अपने लास्ट वनडे में भी 100 मार के आउट हुआ है, अपने लास्ट टेस्ट में भी 74 मार के आउट हुआ है. सचिन तेंदुलकर रिटायर हुआ है 37 या 38 के एज में, जो इनकी एज हो चुकी है. लेकिन इनका फॉर्म इज नॉट इवन 20% ऑफ सचिन्स फॉर्म एट द एज ऑफ 37-38. और रिटायर होने के बाद उसने मुंबई के लिए रणजी ट्रॉफी खेला है. इन दोनों बल्लेबाजों को, रोहित शर्मा और विराट कोहली, एंड दैट इज वेयर माय बिगेस्ट इशू विद देम इज इनको रणजी खेले हुए 6 साल हो चुके हैं. इनका कंपैरिजन हो रहा है उस बंदे से जिसने रिटायर होने के बाद रणजी खेला है और मारा है. सो आई थिंक ये बात भी अब हमेशा के लिए, सदा के लिए बंद हो जानी चाहिए. सचिन तेंदुलकर के पास फॉर मोर देन हाफ हिज करियर ना तो बुमराह जैसा बॉलर था, ना अश्विन जैसा बॉलर था. उसके पास था एक अनिल कुंबले, दैट्स इट. उसके पास ये बॉलर होते ना तो ये मैक्सिमम मैचेस इन विनिंग मैचेस, मैक्सिमम प्रेजेंस इन विनिंग मैचेस के रिकॉर्ड उसके होते, इनके नहीं होते. इनके पास ये सब होने के बाद, प्लस इनके पास पुजारा, रहाणे, ये सब होने के बाद, प्लस इनके पास जायसवाल जैसे यंगस्टर होने के बाद, तो ये हाल है इनका. तो आई थिंक फॉर एवर एंड एवर सम ऑफ दीज डिबेट्स शुड एंड. एंड आई थिंक मे बी पीपल लाइक अस आल्सो हैव बीन गिल्टी के रोहित एक और वर्ल्ड कप जीत जाए, एक और ये जीत जाए, ये इसके 15,000 टेस्ट रन नहीं होने वाले हैं. वाले ये यहाँ पे 15,000 की हम बात कर रहे हैं, इनसे 10-10 रन नहीं बन रहे हैं. और वो करने के चाह में इंडियन क्रिकेट इज सफरिंग एंड बिकॉज ऑफ फैंस लाइक अस आल्सो. मैं आई वुड पर्सनली ब्लेम माय सेल्फ. मुझे याद है कि मैंने बोला था आई वांट रोहित टू प्ले द 27 वर्ल्ड कप. आई वांट नहीं, what I should have said is I want India to win the 27 World Cup. Who plays should be the best possible 11 of that time. And it's okay यार, इतना इंट्रोस्पेक्शन तू कर रहा है उतना रोहित भी नहीं कर रहा होगा, so don't be so harsh on yourself. I think as a country we must do that introspection. Yeah, as cricket fans we must do that introspection because it is so broad as daylight. मतलब ये जोक्स मैच के पहले बन रहे थे. तुम राहुल को नंबर 3 भी कर दो, आएगा वो ओपनिंग में. दोनों मैच में वही हुआ. करेक्ट. तुम कितना भी बोल लो, वो मीम्स आ रहे ना कि वो महेश मांजरेकर वाला मीम फ्रॉम द फिल्म वांटेड, पक्की हीरोइन है हीरोइन, और वो उसको टच कर रहा है, वो डायलॉग बोल रहा है. ये सब मतलब पब्लिक मजाक उड़ा रही है. मीमस वो चीज बोल रहे हैं जो बड़े बड़े क्रिकेट एक्सपर्ट्स और प्लेयर्स को नहीं समझ आ रही बात. I mean, for God's sake, you take the... I don't know. See, the thing also is, and now I'm getting the feeling that possibly some tough people who haven't played cricket recently should be there. Maybe is that the reason why Anil Kumble was not wanted by this team? Because he was too harsh. Because Ajit Agarkar and Gautam Gambhir are way too close to these people. You know, the saath mein cricket... We know those stories, no? See, Dhoni had to fight. Dhoni finally also for what? See, whatever... When he was towards the end of his career, he also quit like that only because he realized कि
the minute he is being harsh, ये कोहली जो उसी ने बनाया था, कोहली हो या रोहित हो, ये सब बच्चों को वही लेके आया था. But the minute he is a little bit, he did that with the older boys, which was probably easier for him to do. सहवाग को, या because they couldn't field properly, भाग नहीं सकते थे, सब कुछ काफी issues थे. But the minute he also turned to these guys and pushed them for performance, तो उसको एक pushback मिल गया. हालांकि धोनी के केस में his own performance was pathetic as a test player. I mean, no century outside in Sena countries, and his captaincy left a lot to be desired, let's be honest, in test matches. I mean, that was the worst phase of test matches. और Test उसके matches, yes. worst phase अभी आया, without an doubt. हालांकि इस worst phase में भी हम मैचेस जीतते तो हैं. वॉश आउट नहीं होता ऑस्ट्रेलिया में, उसके केस में तो वॉश आउट हो रहे थे 4-0. Maybe Dravid should have stayed back on as a coach for Test cricket. Gautam Gambhir could have been the coach for one days, and we should actually have, जैसे हमारी team and captains अलग है ना, we should have a coach also different. See, maybe my point is I'm still okay with giving Gambhir another 6 to 8 months, provided he takes the tough calls with the selectors. I think Gambhir and Ajit Agarkar have to really sit down, Rohit and Virat, and for a minute ignore the contribution to Test cricket or Indian cricket. Vishal, just take a look back at Gautam Gambhir's Test career. No, if he was not, I don't consider him as a great of Test cricket. Okay, he played 50 Test matches. Yes, he played. Yes, that's and he played some of the grinding knocks to save us in New Zealand. Exactly the kind of knock but that still doesn't make him a great Test cricketer. I'm saying Dravid के साथ ही compare कर लो ना. He took the baton from Dravid. Dravid is any day 10 times. Neither was Ravi Shastri. Ravi Shastri ने जितने टेस्ट खेले थे उसने अच्छा ही परफॉर्म किया. I don't know if it is possible to blame Ravi Shastri को तो मैं गिन ही नहीं रहा हूँ कि as a coach he was more like a, I don't know, drama mentor kind of a thing. वो सिर्फ हवा में he used to create hot air and do something, I don't know. But then on hindsight now, he did the best. He did the best. Maybe that's what's required. But the point is, right now this team needs technical know-how of playing test cricket. How to bat out, how to stay there, how to not play those stupid shots. How to build pressure. The shots that make people like Sunil Gavaskar's blood pressure shoot off the roof and go stupid. तो भाई मत खेलाओ, उसको बोलेगा कौन ये? And that stupid should actually be said 5 times more to Virat Kohli. Absolutely. कोई बाहर की बॉल को he is kissing with his bat. कोई सेंस ही नहीं बन रहा है. So, but having said that, much as we outrage over what should happen in the next match, my sense is, my fear rather is, they will let all of this continue and then they will take a call after this match, which I think is wrong because आप अपने proud Australian record को jeopardy में डाल रहे हो just to please a couple of egos. Absolutely. I mean, ये तो कैसे होता है? मतलब. But like, I think what you said, I don't think they'll do anything. But that's wrong. I mean, and if they don't do anything before the next test match, forget these two going away after next test match. The fact of the matter is that it holds Indian cricket in very poor stead in the long run. This will become the benchmark forever. ये इतना allowed है, इतना ज़्यादा allowed है poor performance. Boss, if I was in that dressing room, which I think all of us as fans always imagine and fantasize about it, कि यार मैं उसको ये बता देता, right? But including all the changes that you just said previously, one more change I would say is captainship Bumrah को दे दो last match के लिए. All the player changes that you said, same. नहीं, वो अगर रोहित ड्रॉप होगा तो ऑटोमेटिकली कैप्टनसी बुमराह को ही मिलेगी ना, और किसको मिलेगी? So, and honestly, I still believe they should also be asked about, are they serious about the Champions Trophy? Because एक और टूर्नामेंट क्यों हारना है आपको? One can always argue कि one day form तो उनका अच्छा ही है. Fact of the matter is you've lost 3-0 to Sri Lanka in one day. और उसमें भी ये दोनों थे, हालांकि उसमें रोहित ने परफॉर्म करा था लेकिन विराट ने तो नहीं करा था. So आप genuinely खेलना चाह रहे हो क्या चैंपियंस ट्रॉफी? तो फिर आप रेस्ट नहीं कर सकते, आपको इंग्लैंड के खिलाफ वनडेज खेलने पड़ेंगे. And you can't say I'm tired in Australia क्योंकि आपने कुछ किया नहीं है. Correct. You can't be tired. खाली घूमने से नहीं डरे, अब थक गए. ये सिटी से वो सिटी गए, अब मैं थक गया. खेले तो हो नहीं आप. And then it's clearly like, I don't know if you saw Ashwin's tweet.
he said that, just clarifying, उसने एक tweet डाली थी that leader has to I saw. perform in this manner, and फिर उसने लगा, just to clarify, this is not for the fan clubs of players. हाँ, मैं उनको नहीं बोल रहा हूँ. हाँ. Taking pot shots at Virat and Rohit. And then he said, I was only talking about Jaiswal. Too much is being implied or made up from an implied tweet. Don't overthink. But fact is, he knew that people will imply. The fact Obviously. is that he still said it. Means he's hurting. Now, it's a different question whether he should be putting out such cryptic tweets right now in the middle of the series. I don't think he should. I don't know why he did it. But the fact is that he did it. Let's leave aside whether he should or he should have not. Means there is problem in the team. कुछ तो issues है. वो तो apparent है यार, वो तो apparent है. See, the thing is now that he's gone and he's out now, the best thing we should do is just ignore it. Doesn't matter what he says. यार जब वो दुखी है या वो पिया हुआ है या वो डिप्रेशन में है, वो कुछ भी बोल सकता है, उसको भूल जाओ. तुम्हारा देखो पहले यहाँ पे तुम क्या कर रहे हो, you know. So you can't make this, at least the playing 11 or the dressing room people can't make that as an excuse. से अरे यार उसने ट्वीट कर दिया, उसकी वजह से तुम्हारा माहौल ऑलरेडी खराब है, उसको सुधारो. उसके लिए तुमको जो करना है, you do that. And Shubman Gill also should not come in the next match because he's done nothing. Nothing. इस सब में ना, फैक्ट प्रॉब्लम है ना, ये अब आई स्क्रैच योर बैक, यू स्क्रैच माइन हो गया है. रोहित खुद खराब खेल रहा है, वो विराट को कुछ नहीं बोल सकता. विराट खुद खराब खेल रहा है तो रोहित को सपोर्ट कर रहा है. शुभमन गिल को नहीं बोलेंगे कुछ क्योंकि ये दोनों भी तो खराब खेल रहे हैं. ठीक है, नहीं, बट शुभमन गिल ने भी कुछ नहीं किया लास्ट ऑस्ट्रेलियन टूर के बाद. उसका एवरेज 17 है इंडिया के बाहर, 17. मतलब 17 के एवरेज में आप कैसे खेल सकते हो? भुवनेश्वर का एवरेज 30 है. अब भुवनेश्वर कुमार को क्या, and a lot of fans also and probably a lot of people watching this video also know कि उसका भी talent management वहीं से हो रहा है जहाँ से कोहली का हो रहा है. हाँ. So there are other things at play here which should not be. This game should be only about test. But test then cricket. what I'm saying is the PR machineries and the corporate lobbies are deciding who's in the playing 11. Yeah, it is, which is a fact. Which is very dangerous because that's not happening elsewhere. तो मैच नहीं खेला स्विनी, उसको बैठा दिया यार. But I'm saying ये जो तूने अभी बोला, this is a very controversial thing what you've said, but this is something that 80% of the people don't even know. जो मैच, जो आम जनता जो क्रिकेट देखती है, उनको तो वही दिख रहा है यार कि ये टीम है हमारी. वो बोल सकते हैं वहां पे, अरे इसको नहीं लेना चाहिए था, अरे उसको ऐसे खेलना नहीं चाहिए था, वो सब. All this other inside politics people don't know, and frankly they don't have time for it to understand. ये तो obvious इसलिए है ना क्योंकि जिस बंदे ने कुछ किया नहीं उसकी रीले कट रही है अंदर के कुत्ता के सॉन्ग पे, रीच मारी के सॉन्ग पे अभी, और वो भी इस सीरीज में. अभी बाहुबली, कितने बाहुबली के रील देख देख के मैं थक गया हूँ. एंड 3 मैचेस में 3 अलग अलग लोग बाहुबली बन गए. तो द पीआर मशीनरीज जो चल रही है कि वो इट हैज टू एंड नाउ. आई मीन इट इज हर्टिंग. एंड वही पुजारा और रहाणे ने गलती करी, अपना पीआर कभी करा ही नहीं. बट गौतम गंभीर को तो समझना चाहिए, उसने तो खुद ने इल्जाम लगाया कि मेरी पीआर टीम नहीं थी इसलिए बाकी लोग क्रेडिट ले गए. एटलीस्ट ही शुड सी थ्रू इट. वो भी अच्छे, वो पॉलिटिशियन है बॉस, छोड़ के आया अभी वो पार्टी भी, उसने भी अपना पीआर खूब किया है. वरना उसको ये टॉप पोजीशन कैसे मिल गई? I expected better. It's कम पॉलिटिकल नहीं है वो बंदा, वो भी पीआर करके ही यहाँ पहुंचा है. ये बोल के कि मेरा पीआर नहीं हुआ है, ये वही तो उसने पीआर किया. द फैक्ट दैट यू आर सेइंग that is his PR. He's positioned himself as a person who never got any PR. That is his PR. To me, my grudge with Gautam Gambhir is only going to be this. I expected him to be a lot more tougher. I don't know what his क्या मजबूरियां हैं, but he needs to really. Okay, let's try and wrap this. What about the next match? Now, obviously, you're not going to stick your neck out or even your finger or thumb out. Any predictions? Really, I'm sticking my neck out more out of hope than anything. And yes, to be fair, I think to stretch the match till the last hour of the last day of the last session is a commendable job, given how poor we were. All thanks to Jaiswal, all thanks to Bumrah, and all thanks to Nitish and Washington Sundar.
we must single out these players for special mention. But India की जो हालत थी, I think 2-1 is phenomenal going into Sydney. The fact that you still have a chance to draw the series and retain the BGT is a huge, huge deal. I think there should be a complete overall, and who knows, we might just pull off a surprise. But I'm not sticking my neck out for sure. But I think that complete overall is needed for next match. If not, if we continue with the same approach, I think 3-1 is very clearly in favor you of. finally said it. Till here, I thought you were just being too kind. In my mind, the fact that you are also still happy कि वो 5th day तक आया is just the fact that the bars have been lowered. मेरे हिसाब से तो I don't think, yes, Bumrah should get a special mention because he's played exceptionally well in all the 3 matches till now. But it'll be a miraculous, comeback अगर हम next match जीत गए तो. वरना मेरे हिसाब से तो 3-1 ही है. And maybe then we start afresh with the T20s. Yeah. Correct, with the fresh team, fresh captain, everything. Because then Gautam Gambhir also gets no reasons कि भाई अब सब fresh है उसके हिसाब से है. Yeah, absolutely. So yeah. But let's hope we have a better next year. The next match starts very soon, so now there's no big gaps. 3 दिन के अंदर तो चालू हो जाएगा. So I'm waiting for it. I'll try and wake up on the first 2 days. फिर वहां से देखेंगे क्या होता है उसके हिसाब से. Otherwise, I'm not going उसके बाद कितने दिन टिकता है मैच वो भी देखेंगे. Correct. I don't want to, मेरी sleep sacrifice करना मुझे जरूरी नहीं लग रहा है अभी जिस तरह की performance आ रही है. So let's catch up again in the new year. Yes. With hopefully better results. Hopefully we can say Happy New Year. Yes. ठीक है. Bye Vishal. Bye. Bye.